वो फिलिस्तीन नबियों का जगह है, अंबिया किराम की जगह है, अंबिया किराम की मकाम है, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जायज सिजदा है। वो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बैतुल्लाह की, उसी काबा के अंदर यानी काबा अव्वल बैतुल मुकद्दस के अंदर इमामत कराई है। तकरीबन अंबिया किराम की सुजूद की 1,24,000 अंबिया किराम के सुजूद की जगह मकाम है, उसके अंदर आज इसराइल चारों तरफ से उसको घेरे में रखे हुए मेरे दोस्तों Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله فمن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله المولانا العظيم. میرے محترم دوست بزرگ، آج میں آپ لوگوں کے سامنے فلسطین اور اسرائیل کی متعلق بات کرنے جا رہا ہوں. میرے دوستوں، یہ فلسطین کے مسلمان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی مسجد اقصی کی حفاظت کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اقدامات کیے. جو مسجد اقصی مسلمانوں کی سب سے پہلے قبلہ ہے، مسلمانوں کی سب سے پہلے قبلہ، اور اس فلسطین کے اندر حضرت ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام نے ہجرت کی. پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تقریباً انبیاء کرام اس فلسطین کی طرف ہجرت کی ہے، اور وہ کعبہ اول مسجد اقصی میرے دوستو وہ مسجد ہے جو مسلمانوں کے سب سے پہلے کعبہ تھے، اور جس میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے سید النبی، خاتم النبیین، خاتم المرسلین، رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات کو میرے دوستوں اللہ کے رسول نے 1,24,000 میرے دوستوں انبیاء کرام کی امامت کی ہے. جو سید النبی نے 1,24,000 انبیاء کرام کی امامت کرائی. اللہ رب العزت اسی بیت المقدس سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا، جن کی اللہ کی دیدار کرائی اللہ رب العزت نے. وہ فلسطین نبیوں کا جگہ ہے، انبیاء کرام کی جگہ ہے، انبیاء کرام کی مقام ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی جائز سجدہ ہے. وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اس بیت اللہ کی، اسی کعبہ کے اندر یعنی کعبہ اول بیت المقدس کے اندر امامت کرائی ہیں. تقریباً انبیاء کرام کی سجود کی 1,24,000 انبیاء کرام کے سجود کی جگہ مقام ہے. اس کے اندر آج اسرائیل چاروں طرف سے اس کو گھیرے میں رکھے ہوئے میرے دوستوں ان لوگوں نے مسلمانوں کے اوپر، فلسطین کی مسلمانوں کی گھیرا تنگ کر کے رکھی ہے. ان کے ساتھ ظلم و تشدد کرنے والے میرے دوستوں آج اگر ہم ان کے ساتھ جان و مال کے ساتھ میرے دوستوں ان کی ساتھ حمایت نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ جا کر جہاد نہیں کر سکتے ہیں، کم از کم ہر نمازوں کے بعد ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں. میرے دوستوں آج جو ہمارے یہاں پر ہمارے ملک کے اندر حضرت تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے اکاؤنٹ نمبر دی ہے، اب ان کی اکاؤنٹ میں اپنے مال ڈالتے رہے، اپنے رقم دیتے رہیے، اور جو بھی چیز آپ دینا چاہیں میرے دوستوں حضرت تقی عثمانی
दामत बरकातुहुल आलिया की अकाउंट में देते रहें मेरे दोस्तों, ताकि उनकी मदद होते जाए। उनकी पानी की जरूरत है, उनकी खाने की जरूरत है, उनकी रेशन की जरूरत है, हर चीजों की मेरे दोस्तों जरूरत है। आप मेरे दोस्तों या मुसलमान कम से कम उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं, उनके लिए हमदर्दियां तो कर सकते हैं। मेरे दोस्तों आज आप दूर में हैं, फिलिस्तीन आपसे बहुत दूर है। आज अगर उनकी बराह रास्त उनकी साथ उनकी कदमों में कदम मिलाकर अगर आप जिहाद नहीं कर सकते हैं, कम से कम यहां बैठकर उनके साथ हमदर्दाना सलूक तो करें, उनकी हिमायत तो करें। और जो मुसलमान हमारे ममालिक है उनको भी चाहिए कि इन फिलिस्तीनियों की साथ दे। मेरे दोस्तों याद रखना, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है कि जालिम की जुल्म की वजह से मेरे दोस्तों के जालिम की जुल्म की वजह से कि परिंदों की घोंसलों पर कि परिंदा अपना घोंसलों पर मर जाता है, उसको दाना नसीब नहीं होता, उसको पानी नसीब नहीं होते हैं। आज इसराइल ने इन फिलिस्तीनियों की पानी भी बंद कर दिया, इनको बिजली भी बंद कर दिया, इनको सभी चीजें बंद कर दी है। मेरे दोस्तों फिर अल्लाह की अजाब यकीनन जो इन इसराइलियों की साथ देंगे मेरे दोस्तों उन मुल्कों के ऊपर आकर ये अल्लाह की अजाब देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि हजरत अबू रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है और ये हदीस की बात ही बिल्कुल सच्ची है, यकीनन है। उसकी जुल्म की वजह से अल्लाह मुल्क के अंदर तबाही और बर्बादी लाते हैं। तो लिहाजा हमारे जितनी मुस्लिम ममालिक की सरबराह है उन लोगों को उनकी हिमायत की ऐलान कर देना चाहिए, उनकी हिमायत की ऐलान कर देना चाहिए, उनके साथ रहने की ऐलान कर देना चाहिए। मेरे दोस्तों उनकी उनके साथ में हमदर्दी करना चाहिए और साथ साथ में हर मुल्क से मेरे दोस्तों कि उनके पास हर किस्म की अतियात उनके पास पहुंचना चाहिए। पानी से हो, दूध लेकर हो, रकम की सूरत में हो या अपना जानो माल से हो, इंशाअल्लाह ताला उनकी मदद फरमाएं। अल्लाह पाक परवरदिगार आलम आपकी भी मदद फरमाएंगे। जब आप किसी की मदद करेंगे तो यकीनन आप अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी भी मदद फरमाएंगे। मन खादिमा खुदिमा, जो खिदमत करते हैं अल्लाह की तरफ से वो खिदमत पाते हैं। और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको जो माल दी है मेरे दोस्तों अल्लाह के शुक्र भी अदा करते रहें और शुक्राना की तौर पर अपने में से, अपने बजट में से, रोजाना हफ्ते की बजट में से, महीने की बजट में से, साल की बजट में से कुछ रकम निकालकर अल्लाह के रास्ते में यानी फिलिस्तीनी भाइयों के साथ हमदर्दाना सलूक करें, इन फिलिस्तीनी भाइयों की मदद करें। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे मदद फरमाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हमें यह दुआ है अल्लाह पाक परवरदिगार आलम फिलिस्तीनियों को आजादी फरमाए। या अल्लाह फिलिस्तीनियों को बैतुल मुकद्दस के अंदर हमेशा हमेशा आबाद रखे, उनको बैतुल्लाह के अंदर इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। हमें भी ये अल्लाह के घर सबसे पहले काबा हमारे बैतुल मुकद्दस की ज़ियारत करने की हमें भी तौफीक अता फरमाए और हमारे मुसलमान भाइयों को भी हमारे सबसे पहले काबा बैतुल मुकद्दस और उसमें हमें ज़ियारत की तौफीक अता फरमाए और उसमें सिजदा करने की हमें तौफीक अता फरमाए। 2 रकात नफिल पढ़ने की हमें अल्लाह पाक परवरदिगार आलम तौफीक अता फरमाए। बिलाखिर मैं ये बात बोलना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, दोबारा आप लोगों को ऐलान करना चाहता हूँ, हमारे उस्तादुल मुकर्रम उस्ताद हजरत मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया ने अपने ट्विटर के अंदर अपने नंबर भेज दिए है मेरे दोस्तों। उनके नंबर से आप लोग उनकी मदद करते रहें और उनकी अकाउंट से मेरे दोस्तों आप उनके अकाउंट में रकम जमा करते रहे ताकि फिलिस्तीनी को मदद हो। आखिर दामाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।